Very good morning, class. I am going to take your physical education class by the help of this video. And myself, M.U. Khan, your physical education teacher, your PT teacher. You can say PT teacher. And my name is M.U. Khan. Now I am going to take your class about the physical education, physical activities, games and sports. But in the various conditions of our country and the world also, I am unable to take your class by face, and you are unable to come to the school and join games and sports class because the coronavirus COVID-19 is going on. That's why we are here and sitting in your respective places, and I am sitting in my home and you are sitting in your home and watching class, and I am taking your physical education class through the videos, and a lot of things I am going to tell you about the physical education. And let's start about the physical education, and whatever I will teach you, I will give you the timetable, and whatever it is, I will give you the timetable and how to do and how to perform yourself orally, and I will give you the videos also about it. So let's start. What is the physical education? Everyone knows about the physical education related to the games and sports. It is totally related to the games and sport, but not physical education is not only related to the games and sports. Physical education is your total development of your body, of your physical activities, of your physical behavior. So it is depend on the exercises, lot of physical activities, lot of mass PT, yoga, physical fitness test, physical training, and I will teach you about the various games and sports by the help of videos and lot of things. And I am going to tell you about the physical education is not only the PT, not only the physical training, not only the games and sports. It is the overall development of your body, health and hygiene. Lot of things are included in physical education class. I am going to start physical education as a personal hygiene. तो आपका जो इससे पहले जो आप ये समझ रहे होंगे पीटी क्लास है, तो आपको मास पीटी और गेम्स के बारे में बताएंगे, वो सारा बात की चीज़ है। लेकिन इस वक्त आज के दौर में जो आपके लिए ज़रूरी है वो है आपका इस वक्त personal hygiene. It is very important and useful and meaningful things which you have to learn about the personal hygiene. Everyone knows about the personal hygiene. आपका personal hygiene is स्वास्थ्य विज्ञान, your fitness, your safety of your body, and free from all diseases, free from all the problems, all the health related problems, and you have to keep yourself fit and fine, fit and healthy. Okay, so first I am going to teach you about the personal hygiene. What is personal hygiene? अगर आप पर्सनल हाइजीन पहले से समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको जानेंगे, तभी आप इसको फॉलो कर पाएंगे। और आप इस वक्त घर में रहकर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपकी नहीं हो पा रही हैं। बहुत मुमकिन है कुछ बच्चे जा रहे होंगे पार्क में या कहीं खेलने, लेकिन पेरेंट्स फिर भी डरते होंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताऊंगा जो आप घर में कर सकते हैं और आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और जो है अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं, अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी पर्सनल हाइजीन। इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपका टॉपिक है, लेकिन मैं पर्सनल हाइजीन को पहले ले रहा हूँ, मास पीटी को बाद में लूँगा। पहले आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद आपको जो है उसको फॉलो करना होगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप इसके डिसएडवांटेजेस भी फेस करेंगे। So now I am going to start about the personal hygiene. The definition of personal hygiene is that hygiene is defined as the science and practice maintaining good health. It is the science and practice to maintain good health. अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है, it is called personal hygiene. You can say that personal hygiene is the taking care of our body. आप अपनी बॉडी की कैसे कैसे देखभाल करते हैं, कैसे कैसे उसको आप मेंटेन रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो दैट इट इज द पर्सनल हाइजीन।
How is it possible? I will tell you about the step by step about the personal hygiene. What is personal hygiene? Personal hygiene, I have already told you about to maintain your body, to take care of your body. It's called personal hygiene. And there are the four aspects of personal hygiene. What is four aspects? Number one is cleanliness. Cleanliness क्या चीज है? क्लीननेस जो है आपकी बॉडी पे अपने आप को साफ सुथरा रखना, एक कॉमन लैंग्वेज में कहें अपने आप को साफ सुथरा रखना। तो ये आपकी क्लीननेस कैसे शुरू होती है और कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लीननेस को बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं आपकी क्लीननेस के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उठने थे, सुबह सोकर उठते हैं, तो सबसे पहले आपको सुबह सोकर उठने के वक्त कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उठें। आजकल देख रहे हैं क्लासेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो आप लोग लेट उठते हैं और लेट उठने के बाद बहुत सारा फिर भी आप बिस्तर पे लेटे रहते हैं, बहुत लेजीनेस रहती है। सब लोगों के साथ है, कोई पर्टिकुलर नहीं। लेकिन अगर आप सुबह टाइम से जल्दी उठेंगे तो आप जो है बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, और अपने आप को फिट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है? फर्स्ट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, हैंड वॉश, ठीक है। सबसे पहले आपको पानी पीने जाना है, लेकिन उससे पहले आपको पहले अपने हाथ कैसे धोने, किस तरीके से धोने हैं। बहुत सारे तरीके आपको इस वक्त कोविड में बताए गए होंगे, आप लोगों को ही मालूम है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। हाथों को पूरे तरीके से धोएंगे, आगे पीछे से, फिंगर्स के अंदर स्नेल्स से एक दूसरे से साफ करेंगे, और बिल्कुल हाथों को 20 सेकेंड तक पूरे तरीके से रब करेंगे और उसको धोएंगे। किसी भी साबुन से, किसी भी सोप से आप धो सकते हैं, तो आप उसको हाथों को धोएंगे। सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन सुबह में आप जो है पूरा हाथों को धोएं, ज्यादा बेहतर। हाथों को धोने के बाद आप फ्रेश वाटर पिएंगे। यू हैव टू टेक फ्रेश वाटर मोर देन 1 ग्लास। ट्राई टू डू इट। अगर अभी ज्यादा नहीं पी पा रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें, ज्यादा पानी पिए। सबसे पहले खाली पेट आपको बिस्तर से उठते ही अपने हैंड वॉश करने हैं और अपने आप को पहले पानी पीना है। यू हैव टू टेक 1 ग्लास, 1 एंड मोर देन 1 ग्लास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जब आप पीते हैं उसके बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहली चीज बेनिफिट क्या होता है? आपकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती है जब आप सो रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है। बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के जो रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर सुबह ही सुबह आपका लिवर, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, इनको पूरे तरीके से वॉश करता है। सुबह ही सुबह आपकी बॉडी के जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सुबह ही सुबह सब लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, इसी तरीके से आपको घर को धोते हैं, साफ करते हैं। इसी तरीके से आपका 1 ग्लास पानी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को फ्लश आउट करता है। इंटरनल ऑर्गन्स के जो टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करता है। फिर आप जो है आप पानी पीते हैं, आप कोशिश करते हैं फ्रेश होने की, जाते हैं फ्रेश होने। उसके बाद फिर आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना है। हैंड वॉश कैसे करना है मैंने आपको बताया। सबसे पहला काम, बिस्तर से उठते ही आपको 1 ग्लास पानी पीना है, कम से कम 1 ग्लास। ज्यादा पिएंगे और भी बेहतर होगा। उसके बाद अब आजकल जो सिचुएशन चल रही है आपकी कोरोना की और उसकी, तो आप देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी छोटे बच्चों पर और जो बुजुर्ग होते हैं 60+ उन पर। तो आपको सबसे पहले जो मैंने फ्रेश वाटर जो मैंने कहा, उसको आप थोड़ा सा बॉइल कर लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना, जिससे आप पी सकें आराम से। तो आप उसमें उसको थोड़ा सा बॉइल कर लीजिए और उसको आप पी लीजिए। अगर पीने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा गार्गल ही कर लीजिए उससे, ठीक है। तो आपकी बॉडी में सबसे पहले ये गुनगुना पानी, वैसे तो आप पानी पीना चाहिए आपको, लेकिन अगर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपना पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा गर्म पानी नहीं पी पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा अटपटा लगता है शुरुआत में, तो आप इसको थोड़ा सा गुनगुना करके थोड़ा ही पी लीजिए। बाद में आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको कोल्ड वाटर नहीं पीना है। सुबह आप फ्रिज में जाके ठंडा पानी नहीं पीना है। आपको सबसे पहले कोशिश करिए बॉइल्ड वाटर पिए, ठीक है। और उस पानी को पीने के बाद आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करें थोड़े से, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। तो आपको सबसे पहले पानी पीना है। आपके हलक में जो भी चीजें हैं,
सलाइवा है, इन सबको बिल्कुल साफ करना है। आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करने के लिए ये बॉइल्ड वाटर और ये वो फ्रेश वाटर बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आप फ्रेश होके जाते हैं सर, फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद आपको ब्रश करना होता है। प्रॉपरली ब्रश योर टीथ। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रश करने के बाद पानी पीना, ऐसा ना करिए। आप सबसे पहले बिस्तर से उठते ही पहले आपको पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद ब्रश करिए। ब्रश करने के बाद आपको फिर पूरे तरीके से ब्रश कैसे करना है बताने की जरूरत नहीं, आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद ब्रश करने के बाद आप जब अपने आप को पूरे तरीके से इंटरनली फ्रेश महसूस करते हैं तब आप नहाइए। नहाना धोना जैसे आपको होता है नॉर्मल आप कीजिए। फिर आप नाश्ता करने के लिए आइए। नाश्ता करते वक्त आपको जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, पूरा अच्छा। ये आपके पेरेंट्स आपको ध्यान रखते होंगे आपका। और अवॉइड करिए जंक फूड को। अब जंक फूड क्या है, सुबह सुबह नाश्ते में अगर आप बर्गर पिज़्ज़ा या ये चाउमीन बनवाते हैं मम्मी से, तो ये चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। जितनी भी मैदा वाली चीज़ें होती हैं ये आपको नुकसान करती हैं। आप पूरी कोशिश करिए, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं आप, मूसली आजकल है, दलिया ले सकते हैं, चने उबले हुए ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। बटर है, मिल्क है, ये सब सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको मिल्क से प्रॉब्लम होती है, वो जो है हम पीते हैं तो हमारे वोमिट लगता है। ऐसा नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। आपकी बोन को मजबूत करता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो आप जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग अंडा ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। वेज लोग जो हैं वो अपना जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़। नाश्ता आपका अच्छा होना चाहिए। नाश्ता अगर आपका अच्छा होगा तभी आप पूरा दिन अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आती है आपको उसके बाद नाश्ता करने के बाद आपको प्रॉपर डाइट आपकी जब बॉडी में पहुंच जाती है तब आप कोई भी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है तो आप नाश्ता करने के बाद ना करें। फिजिकल एक्टिविटीज़ आप सुबह उठ के एक ग्लास बॉइल्ड वाटर पी के या नॉर्मल वाटर भी पी के आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप नाश्ता करें, उसके बाद नहाएं, उसके बाद फ्रेश वो सब चीज़ें करें अपनी दिनचर्या, तो वो सारी चीज़ें आप उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज सुबह में नहीं कर रहे हैं तो आपको नाश्ता करके फिर आप दिन भर का जो काम है, आपकी स्टडी, आपके क्लासेस हैं, वो आप कर सकते हो। और पूरी कोशिश करनी है कि आपको हेल्दी फ्रूट्स लेने हैं। जो भी आपका फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो आपने लेने हैं। अच्छी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा बना के रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इम्यून सिस्टम सुधारने के लिए आ रही हैं। हल्दी का काढ़ा है और अदरक है। बहुत मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके पेरेंट्स को भी सब चीज़ें मालूम है। जो पेरेंट्स आपके ले रहे हैं वो आप भी लीजिए, भले ही थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन आप भी लीजिए। तो आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आपके लिए इस वक्त नाजुक हालात में अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई, क्लीनिंगनेस। तो ये मैंने जो आपको बताया क्लीननेस, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अगले एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट और कौन कौन से हैं पर्सनल हाइजीन के। तो फिलहाल आपके इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो जो है आपको थोड़े हिस्सों में बांट कर इसलिए बताता हूँ कि आपको बोरिंग ना होने लगे। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने नेक्स्ट वीडियो पर जाइएगा। ओके, थैंक यू।